Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Are we all alive? क्या हम सब जीवित हैं? Yes. It's so beautiful to be all over here in this graduation day. बहुत सुंदर बात है कि हम इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में हम सभी उपस्थित हैं। I believe we are all happy over here. मैं विश्वास करता हूँ हम सभी जन आनंदित हैं, खुश हैं। So, respected chief guest, principal, Paul Galziela, board members, teachers, co-students, pastors, all brothers and sisters, greeting in the matchless name of our Lord Jesus Christ. आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रिंसिपल, PZMS के सारे बोर्ड मेंबर्स, सारे शिक्षक और मेरे संगी छात्र, आप सभी को और यहाँ पर आए हुए सभी पासवान, मेरे भाई बहनों, आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत। I am privileged to share a word with you. ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे वचन बांटने का मौका मिला है। As Pastor Sam has already encouraged you in some way or the other. जैसे पासवान सैम ने पहले से ही हम सभी को उत्साहित किया किसी न किसी रीति से। I'm the eldest in this graduation group over here. ये सारे बैच में मैं सबसे बड़ा हूँ। And this month on 21st I celebrate my 50th birthday. और इस महीने की 21वीं तारीख को मैंने मेरा 50वां सालगिरह जन्मदिन का सालगिरह मनाया। So there is no age for learning. तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। Hallelujah. हालेलुया। We all can learn. हम सभी जन सीख सकते If हैं। you have not started, you can start it from today. अगर आपने शुरुआत नहीं किया तो अब से आप शुरू कर सकते So हैं। let's jump into the sea of word. तो आइए हम वचन में हम डूबेंगे। So we are going to open our Bibles to 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8 we are going to read. दूसरा तिमोथी उसका 4था अध्याय और 6ठे वचन को हम पढ़ेंगे। 6 to 8 we are going to read. 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। Are we all here? क्या हम सब यहाँ हैं? For it says, For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the fight. Finally, there is laid upon for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give it to me on that day. And not to me only, but to all who have loved his appearing. दूसरा तिमोथी 4था अध्याय 6ठी आयत से पढ़ती हूँ। क्योंकि अब मैं अग्र के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। Hallelujah. Hallelujah. It's for all of us who are seated over here. We are going to receive the crown of glory. जितने भी हम यहाँ पर हैं, हम सभी जन वो महिमा के मुकुट को प्राप्त करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Yeah, Paul is talking on these last days of his life, what he wants to express to all of us. जो हम सभी को पौलुस अपने आखिर के दिनों में बताना चाहता है, यहाँ पर उल्लेख है। He says he has poured out everything for everyone in the world over there, to the Gentiles and other people over there. पौलुस कहते हैं कि मैंने अपने आप को पूरी रीति से उंडेला अन्य जातियों के लिए, सभी लोगों के लिए। He's imitating Jesus, what Jesus did, the same words he wants to tell the people, I have done, given my best to you all. जिस रीति से यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरह से दे दिया, पौलुस कहना चाहते हैं कि मैंने भी अपने आप को सर्वस्व रीति से दे दिया आप सभी के लिए। And he said, my time has come that the departure is going to come. और पौलुस कहता है मेरा समय है कि अब मुझे जाना होगा। Jesus too told his disciples, my time is very close, I'm going to go, be prepared. यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा था कि मेरा समय आ चुका है, मैं जा रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। So the Lord is telling us to be pour out everything, the best what He has given to us. आज प्रभु हमसे कह रहा है कि जो भी हमारे अंदर है हमको उंडेल देना है, अपना उत्तम हमको देना है। Hallelujah. Hallelujah. Everything what is there in us belongs to God. जो भी हमारे अंदर है सब कुछ परमेश्वर का ही है। Everything what is what we possess it belongs to God. जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी हमारे पास है, वो सब कुछ परमेश्वर का And है। if we believe you are purchased by the blood of Jesus, that means we belong to Jesus. और अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमको यीशु मसीह ने अपने अनमोल लहू से खरीदा है, इसका अर्थ ये है कि हम पूरी यीशु के हैं। So if we are purchased by Jesus, everything what we do, we need to give 100% in that. So अगर यीशु ने हमको खरीदा है, यानी कि हम जो भी करते हैं हमको अपना 100% प्रभु के लिए देना है। Paul learned of everything what the Holy Spirit wanted to teach him.
पौलुस ने वो सब कुछ सीखा जो पवित्र आत्मा ने उनको सिखाया, and he gave out all his best to all the people over there. और जो भी उत्तम था वो सब कुछ उन्होंने लोगों को सिखाया या दे दिया। Verse 7 says he has fought a good fight over there. 7वीं आयत में लिखा है, मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ा है। We have not yet started, हमने शायद शुरू नहीं किया but there होगा, are some who have already started, लेकिन हमारे मध्य में कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं and we are in a process. और हम इस क्रिया में हैं। If you learn and you understand, then you can fight a good fight. अगर हम सीखेंगे, जानेंगे, तब हम अच्छी कुश्ती को लड़ पाएंगे। Many of us go for jobs, हमें से बहुत से लोग नौकरियों पर जाते new हैं, jobs. नई नौकरियों पर When you go for जाते new हैं। jobs and interviews, नए नौकरी को जाने से पहले हमको इंटरव्यू पास करना होता so we है। get to know that new questions are asked to us. नए नए सवाल हमारे सामने रखे जाते हैं। When we learn this question, next time when you go for the interview, you clear the interview. तो अगली बार जब दूसरा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं और वो नए जगह पर हम उस इंटरव्यू को अच्छी तरह से क्लियर कर पाते In हैं। the same manner, Paul fought the good fight by learning more and more. उसी रीति से पौलुस ने अच्छी लड़ाई को लड़ा, क्योंकि वो सीखता गया और ज्यादा सीखता गया। And at the end of time, he said, I finished it very beautifully. और वो कहता है कि अब मेरे जीवन की यात्रा में मैंने सब कुछ अच्छे से समाप्ति की If है। you remember Jesus on the cross, अगर आप यीशु को याद रखते हैं सलीब पर, he said, it is finished. यीशु ने कहा कि सब कुछ समाप्त हुआ। Paul remembers everything what he has done beautifully. He says, I've fought a good fight and it's finished now. पौलुस भी याद रखते हैं किस रीति से वो अपने जीवन को व्यतीत किया, और इसलिए वो कहता है कि मैंने मेरी कुश्ती को अच्छी तरह से लड़ा है। We are children of the living God. हम जीवित परमेश्वर के संतान Every हैं। day we struggle with the enemy. हम हर बार जूझते हैं, संघर्ष करते हैं शत्रु के साथ। But if we learn the word of God, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, if you deep down sink in the word of God, अगर अपने आप को वचन की गहराई में डुबो देंगे, we can stand against every evil forces, every wrong thing in the name of Jesus. शत्रु के हर एक प्रहार से, हर एक अंधकार की शक्तियों के विरोध में हम खड़े रह पाएंगे मसीह यीशु के नाम में। Thirdly, he says, I have kept the faith. तीसरी बात वो कहता है, मैंने विश्वास को बनाए रखा है। Hallelujah. हालेलुया। This is a testing time. ये समय है हमारा परखा जाने का। Every day is a testing time. हर दिन हमारे लिए परीक्षा का दिन होता Paul है। went through many testing times. पौलुस बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरे। It was not an easy or a cakewalk. बहुत आसान नहीं था, बहुत संघर्ष था, कठिन था। He was beaten more than Jesus. यीशु से ज्यादा मार पौलुस ने Always खाई है। was hurt and always sick in his body. हम देखते हैं हमेशा वो मार खाए हुए थे, उनके शरीर पर घाव हमेशा होते But he थे, did not take a step, he did not come back on his faith. लेकिन पौलुस ने कभी भी पीछे की तरफ कदम को नहीं बढ़ाया। But the more he was beaten, he marched ahead in the name of Jesus. जितना ज्यादा उन्होंने यीशु के लिए मार खाया, उतना ज्यादा वो आगे बढ़ते गए। He kept his faith very strong in the Lord. उन्होंने यीशु में या प्रभु में अपने विश्वास को बनाए रखा। He imitated what Jesus did. जो यीशु ने किया, उनका अनुकरण उन्होंने किया। Jesus was beaten, scourged, nailed, everything, but Jesus did not let go. He lifted himself on the cross over there. यीशु को भी मारा गया, सताया गया, कोड़े लगवाया गया, उन्होंने हार नहीं मानी, उस सलीब पर वो चढ़ गए। Because what was written in Isaiah, it had to come to pass. क्योंकि जो यशायाह की पुस्तक में लिखा था उसको पूरा होना था। So here we see Paul has fought a good fight. हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस ने अच्छी लड़ाई को लड़ा है। He has kept the faith. उन्होंने विश्वास की रखवाली की है। And now he's saying what is going to happen in the future when he dies. और वो कहते हैं कि आगे मरने के बाद या प्रभु में सोने के बाद क्या होगा, उसका उल्लेख वो करते He is हैं। going to receive the crown of life. वो कहते हैं कि एक मुकुट उनको मिलने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। We all have to pursue for the crown of life. हमको भी उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए पूरा यत्न करना He है। knows there is hope over there. वो जानता है कि हमारे लिए आशा है। In the end, something good is going to come out. अंत में बहुत उत्तम कुछ निकलने वाला Today we है। are seated over here. आज हम यहाँ पर बैठे But हैं। there are many missionaries outside there बहुत सारे मिशनरीज बाहर हैं, who are struggling, जो जूझ रहे who हैं, are fighting, जो संघर्ष कर रहे who are हैं, keeping their faith, जो अपने विश्वास में दृढ़ हैं। marching on in all troubles. संकट के समय में भी वो आगे बढ़ रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because they know what is kept for them. क्योंकि वो जानते हैं उनके लिए क्या इंतजार कर Today रहे हैं। the Lord is talking to us प्रभु आज हम हर एक से बात कर who are रहे हैं, in the process, जो हम क्रिया में हैं। who have not started yet. हो सकता है हमने शुरू नहीं We किया, need to kickstart right now in the name of Jesus. हमको इसी क्षण से शुरू करना है मसीह यीशु के Start नाम में। learning, start growing, हमको सीखना है और बढ़ते जाना है। and you will see yourself
और हम देखेंगे अपने आप The को joy of the Lord is your कि strength. परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत As है। you keep marching ahead, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, as you keep learning ahead, जैसे आप और ज्यादा सीखते you जाएंगे, yourself will see you on another level in the name of Jesus. आप देखोगे कि आप अगले आयाम पर पहुंचे हो मसीह यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. So the four things what Paul is telling us today. तो यहाँ 4 चीजें जो पौलुस आज कहते हैं We हमसे, need to give 100% to the Lord. हमको अपना 100% प्रभु को देना है। We need to fight a good fight. एक अच्छी लड़ाई को हमको लड़ना We है। need to keep our faith हमको हमारे विश्वास की रखवाली करनी है। and proceed for the crown of life that the Lord has kept for us. और चौथी बात, हमको हमारे उस मुकुट के लिए आगे बढ़ते रहना है। Hallelujah. Hallelujah. With this, let us close our eyes. आइए इसी के साथ हम अपनी आंखों को मूंद And we are going to दीजिए। check ourselves हम अपने आप को जांचेंगे। as we are learning and growing in the Lord. जैसे हम प्रभु में सीख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। Everyone is in some church. हम हर एक जन किसी न किसी कलीसिया में है। Every time we are learning something from the Word. हर बार हम वचन से कुछ न कुछ सीखते हैं। Are we still the same or have we grown up in that some area or the other? क्या हम उसी स्तर पर हैं या हम अपने आप को, अपने स्तर को बढ़ा रहे हैं? We need to learn more. हमको और सीखना है। We need to sink more in the Word of God. वचन में और गहराई में हमको अपने आप को डुबाना है। If you have not started, अगर हमने नहीं शुरुआत today की, is the day. आज दिन है। The Holy Spirit is over here. पवित्र आत्मा हमारी मौजूद He's है। stirring up everyone's heart who have not started yet. जिन्होंने अब तक शुरू नहीं किया, प्रभु हमारे हृदय को हिला रहे हैं। In God's eyes, we are all valuable. प्रभु की नजर में हम सभी जन बहुत मूल्यवान And हैं। we know you're valuable. और जब हम जानते हैं कि हम मूल्यवान We हैं, need to be used for His glory alone. हमको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना And जरूरी the है। giftings and talents in our lives और जो भी वरदान प्रभु ने हमारे अंदर डाले हैं, need to be used for His glory alone. परमेश्वर की महिमा के लिए ही केवल उसका इस्तेमाल So होना, that all those who are perishing, ताकि जो भी नाश हो रहे हैं they will not perish. वो नाश न होने But पाए। God will use you for mighty things what He has kept in your life. लेकिन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु की महिमा के लिए हमारा इस्तेमाल करेंगे। The Lord is going to use each one of us to lift up the people who are dead or there. जो बाहर नाश हुए जा रहे हैं उनको उठाने के लिए प्रभु हम हर एक का इस्तेमाल Who are करेंगे। spiritually dead, you will lift them up in the name of Jesus. जो आत्मिक तौर से मरे पड़े हैं उनको उठाने के लिए प्रभु हमारा इस्तेमाल करेंगे। Cling on to the Holy Spirit. आइए हम पवित्र आत्मा को और कसकर पकड़ लें। Learn about the Word of God. हम परमेश्वर के वचन से सीखें। Have the heart of learning more. हमारा हृदय एक सीखने वाला हृदय हो। Have the heart of obeying God. परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानने वाला हृदय। And fight a good fight in the name of Jesus. और अच्छी कुश्ती को हम लड़े मसीह यीशु के नाम में। With boldness the way Paul fought. जिस रीति से निडरता से पौलुस ने अपनी लड़ाई को लड़ा, Because he knew where the future is. क्योंकि वो जानता था कि भविष्य में क्या है And where he is going to go. और वो कहाँ जाने वाले हैं। Lord, we thank you. प्रभु जी हम आपको We धन्यवाद know you are a देते good हैं। God. हम जानते हैं आप भले You have परमेश्वर। spoken to the word, Lord. प्रभु वचन के द्वारा आपने हमसे बातें And की you have encouraged us, Lord. और आपने हमको प्रोत्साहित किया है। The fire which was like a lamp, Lord. प्रभु जी आपका वचन हमारे लिए दीपक है। The fire in us which was like a lamp, प्रभु Lord. जो अग्नि हमारे अंदर एक दिए के समान है प्रभु Today it जी। has become like a torch, Lord. प्रभु आज वो प्रज्वलित हो A गया है। fiery torch, Lord. प्रभु जी एक प्रज्वलित हो You are गया है। stirring up us right now, प्रभु Lord. आप हमको आप हिला रहे To हैं। not just sitting in our homes. प्रभु हमारे घरों में हम बैठे नहीं To रहेंगे। march out and give the good news to the poor, the rich and the needy ones right प्रभु जी now. जो जरूरतमंद है, जो अमीर है, जो गरीब है, हर एक को प्रभु आपके सुसमाचार का प्रचार हम करेंगे। And we believe. और हम विश्वास करते Today हैं you are seated over there. प्रभु जैसे जो लोग बैठे हैं, Coming here you will be standing and learning more about the word of God. प्रभु जी आने वाले समय में और भी लोग सीखेंगे आपके वचन से। Enroll your children for something good, that is for learning the word of God. प्रभु जी आपके लोगों को आप और सिखाने के लिए प्रोत्साहन दोगे। Enroll yourself for learning the word of God. आप अपने आप को आगे करें कि आप प्रभु के वचन को This is सीखें। the best place of investment what the Lord is speaking to us. प्रभु कहते हैं कि ये बहुत ही उत्तम जगह है जहाँ पर हम अपना निवेश कर सकते हैं। And the profit is in abundance. और जो हमारे लिए मुनाफा है वो बहुत आयत का है। And that you will see in the name of और Jesus. वो हम देखेंगे मसीह यीशु के नाम We में। thank you, we give glory and honor to you. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद, महिमा, आदर देते हैं। Thank you for the word of God which spoke to each one of us. धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। इस वचन के जरिए आप हम हर एक से बातें किए। In the mighty name of Jesus we pray. यीशु मसीह के समर्थी नाम में हमने प्रार्थना को किया। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दें।